Identify the conditions shown in the figure below. This could be smallpox, but smallpox का जो rash होगा ना, वो elevated होगा. यहाँ आप can you appreciate this is not elevated? It is a brownish color rash which is plain. Syphilis. This is secondary syphilis. जो smallpox का rash होगा, वो बेटा limbs पे ज्यादा होता है. It is less in the trunk. And बिल्कुल आपका differential अच्छा था. That at least you did not answer chicken pox. And scabies का तो मैंने आपको दिखाया था, वो reddish rash होगा with burrows. So scabies भी नहीं है. Either smallpox or syphilis. Syphilis is secondary syphilis. These are brownish colorish, brownish reddish color patches. These are brown to red color patches, which are characteristics for secondary syphilis. Each of the following statement concerning Kala Azar is correct except. Kala Azar is correct except it is caused by Leishmania donovani, transmitted by sandflies, occurs in America, can be diagnosed by A mastigotes. तो इनमें से incorrect क्या है? Incorrect बताना ना. Incorrect is option C. It is not there in, like, it's not occurs primarily in rural Latin America, beta, primarily India, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों में होता है. यस, अमेरिका में भी होता है बेटा. इट इज देयर इन ब्राजील या साउथ अमेरिका में. ब्राजील, साउथ अमेरिका में भी होता है, बट मोर कॉमनली इन इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में ज्यादा होता है. So it primarily occurs in rural areas in Latin. ये गलत आंसर है. It can be diagnosed as A mastigotes. This is correct. Sandfly and Leishmania तो है ही है. JE life cycle in nature runs between cattle and birds, pigs and human, birds and pigs, pigs and mosquitoes. Better answer होता अगर mosquito and birds होता, because this is the maintenance host. But agar pigs hai, तो pigs are also the amplifying host. So therefore, A becomes our single best answer. It is not C, it is not D. Kit numbers, kits tab aap kar loge. What is the barometer of social welfare? Cholera, because it talks about sanitation, water hygiene. It talks about sanitation and water hygiene. Malaria nahi hai. Tuberculosis, it is a barometer of socio-economic status of a country. Socioeconomic status. Leprosy, again, it is a barometer of kind of that only, socioeconomic status. TB and leprosy, they usually go hand in hand. इकट्ठे होते हैं. Which is not a component of epidemiological triad for tuberculosis. Which is not a component for epidemiological triad. So malnourished child, yes. TB तो agent हो गया, host हो गया, environment हो गया, duration of illness is not a component of the triad. अगर duration होता तो यहाँ पे triangle होता. याद है हमने बात की epidemiological triad, epidemiological triangle. Physical activity, reduced absence are lifestyle factors. ये सब कर लोगे. Most common cause of blindness in India is best level of prevention for breast cancer. Best level for prevention of खत्म हो गए. 125 क्वेश्चन करे तुमने. कुछ ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस है बेटा. नीट वीट के जो एफएमजी के क्वेश्चंस है ना, इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस. हम ये कर लेते हैं, टाइम उतना ही है. उसका रीजन है कि हम वो तो वैसे भी अभी मैंने आपकी क्लासेस से फ्री होके
इस हफ्ते में नहीं तो नेक्स्ट वीक में वो यूट्यूब पे लाइव आ जाएगा, राइट? सो ऑल द डिस्कशन ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन क्वेश्चंस फ्रॉम एफएमजी एग्जाम, नीट एग्जाम, तो वो एक ही सीरीज हम बनाते हैं, उसमें सारे पिछले पूरे साल के क्वेश्चन सब डिस्कस, तो वो बेटर है बजाय के तोड़ तोड़ के करोगे। बट एनीवेज, थोड़े से ये क्वेश्चंस कर लो एंड आई थिंक विल बी ऑफ प्रीटी लिटिल बिट अर्ली। बट बिफोर वी डिस्कस दिस, एक सेकेंड बस। सो दिस इमेज वाली फाइल आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, बट यू हैव इट इन योर वर्कबुक एज वेल। सो कलर का क्या करना है बेटा? ये कौन सा एक्सरे सीटी है जो मैंने कलर दिखाना है? लोगो लोगो ही है, अब चाहे वो ब्लैक में हो चाहे वो वाइट में हो, लोगो तो लोगो ही रहेगा। सो I've just requested them to send you the PDF for the color images, and they will be doing that very soon. बेटा, all the images that you have, ये सारी images बच्चे नंबर्ड है, राइट? तो ये नंबर्ड इमेजेस जो हैं इनका एक अलग से पीडीएफ आएगा, और उस पीडीएफ में ये नंबर और उस लोगो का नाम होगा। सो वी डोंट नीड टू डिस्कस ईच एंड एवरी इमेज, वो वैसे ही आप, मतलब ये तो लोगो ही है ना, अब ये तो या तो पता है या नहीं पता, आप दिमाग खुर्च के तो नहीं कह सकते ये मुझे लग रहा है कि ये होगा, ये तो कहीं से लेप्रेसी नहीं ना लगेगा, या तो आता है या नहीं आता, राइट? एंड मेरे को इसमें एक्सप्लेन भी नहीं कुछ करना होता, इट्स जस्ट अ लोगो। तो दो चार कुछ लोगोस की हम बात कर लेते हैं बेटा। व्हाट इज 1.1? वेरी क्विकली लेट्स जस्ट फिनिश दिस टॉपिक अबाउट इमेजेस। सो व्हाट इज 1.1? Births and deaths. This is births and deaths. So it talks about CRS. कौन सा लोगो है ये? CRS. What is CRS? You remember? CRS क्या था? Civil Registration System. Civil Registration System. What is 1.3? 1.3 क्या है? ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये मॉस्किटो है, मॉस्किटो आया है और वो काटेगा। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। व्हाट इज दिस लोगो फॉर 1.6? ब्लाइंडनेस। क्यों बोले ब्लाइंडनेस प्रोग्राम? आंख बनी है, आंख के पीछे रेड क्रॉस क्यों है? डायरिया कंट्रोल। ब्लाइंडनेस को तो आंख शो करेगा, रेड क्रॉस क्यों है? बिकॉज इट इज फंडेड बाय डैनिडा। उन्होंने अपना फ्लैग का निशान लगाया, डेनमार्क नहीं है, डेनमार्क इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। सो डैनिडा की फंडिंग है बेटा, इट जस्ट हेल्प्स यू रिमेंबर दैट इट इज फंडेड बाय डैनिडा, डेनमार्क इंटरनेशनल, डैनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। व्हाट इज 1.7 फॉर? व्हाट इज 1.7 फॉर? 1.7 किसके लिए होगा अंदाजन? इट इज फॉर यूनाइट फॉर डायबिटीज। यूनाइट फॉर डायबिटीज। सो याद रखो, डायबिटीज के लिए एक सिंपल गोला बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। व्हेन डू वी हैव इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे और डायबिटीज प्रिवेंशन डे? इट इज ऑन चाचा नेहरू बर्थडे, 14th November. 14 November is World Diabetes Day. What is this logo for? 1.10. It is for? नहीं, कार्डियोवास्कुलर। क्यों बोले कार्डियोवास्कुलर? ईसीजी कहाँ है? ईसीजी, वेरी नाइस, दिस इज ईसीजी। आपको लगता है ईसीजी में बेटा ये जो पी वेव है ये ऐसी नीचे हो जाती है? सो पी वेव, हाँ, जिनको आता है वो शांत रहे, क्योंकि इट्स जस्ट अ लर्निंग वे। जिन्होंने सुना हुआ है वो, ऑब्वियसली इट्स अ नेशनल हेल्थ पोर्टल, बट इट्स जस्ट अ लर्निंग वे, बिकॉज एग्जाम में ये एनएचपी बहुत तरीके से पूछा जाएगा बेटा। सो आई जस्ट वांट यू टू टेक दिस लर्निंग एक्सरसाइज। सो दिस इज एन एच एंड पी, राइट?
इट इज नॉट ईसीजी, इट इज एनएचपी। एनएचपी क्यों लिखा हुआ है? नेशनल हेल्थ पोर्टल। इट इज अ नेशनल हेल्थ पोर्टल। इट इज अ नेशनल हेल्थ पोर्टल। What is this logo for? 1.1. What is 1.1 for? NRHM. क्यों बोले NRHM? रूरल है। हिंदी में लिखा हुआ है, अच्छा। वेरी नाइस, हिंदी में लिखा हुआ है। हु इज दिस बेटा? फादर, पापा। ये कौन है? बच्चा। मदर। ये कौन है? ये बच्चा नहीं है, बच्ची है। स्कर्ट नहीं दिख रही तुम्हें? बच्चा थोड़ी ना स्कर्ट पहनेगा। सो दिस इज द डॉटर। ये डॉटर क्यों बनाई है इन्होंने? फादर मदर के पास एक डॉटर क्यों है? इट इज टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड। मतलब ये क्या बताना चाहता है? दैट एवरी कपल शुड हैव एटलीस्ट वन डॉटर। क्यों वन डॉटर? मतलब एनआरआर कितना होना चाहिए? वन। टू हैव एनआरआर वन। टीएफआर कितना होना चाहिए? लेस देन 2.1। वेरी गुड। सो दिस इज द डॉटर। तो दूसरा बेटा कहाँ है या बेटी कहाँ है? दूसरा बच्चा कहाँ है? नहीं, वो फोटो खींच रहा है। वेयर इज द सन? यू कैन सी दिस इज द डॉटर एंड दिस इज द सन। नहीं, नहीं अच्छी नहीं लगी है। This is the daughter and this is the son. So it completes the family, son and daughter. It just wants to emphasize that how many children should a couple have? 2.1. To have 2.1 children, how many daughters should a couple have? One. इसलिए daughter को highlight करके दिखाया हुआ है. Otherwise, there are two children, son and a daughter. Right? Otherwise, ये लोग धूप में क्यों खड़े होंगे ना बेचारे? वैसे ही धूप में खड़े होंगे बिना पेड़ की छांव के. So next is 1.12. What is this logo for? 1.12. This is for ब्रेस्ट फीड। इसका लोगो होगा मतलब ब्रेस्ट फीड का। यूनिसेफ। वेरी नाइस बेटा, आपने ये छोटे वाला बताया, बड़े वाला बताना। इट इज फॉर BFHI। व्हाट इज BFHI? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव किसके लिए है? टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। इसका इंडियन वर्जन क्या होता है? ये तो UN है, इसका इंडियन वर्जन क्या है? BFHI, आंगनवाड़ी। BFHI का इंडियन वर्जन इज कॉल्ड एज माँ। व्हाट इज माँ? माँ स्टैंड्स फॉर मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। माँ स्टैंड्स फॉर मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन किसको प्रमोट करता है? इट इज सेम आंसर, इट इज टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। कितना ब्रेस्ट मिल्क, कितनी देर के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क करना चाहिए? 6 days, 6 months। क्यों? वैसे ही 6 महीने मतलब अच्छा नंबर है। 3 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। हाँ जी। बेबी। अच्छा, ये पहले ये बताओ, 6 मंथ्स तो बाद की बात है, पहले ये बताओ एक्सक्लूसिव अगर करते हैं, अगर मान लो बच्चा है कोई, हमारा बच्चा है और वो 4 महीने का है, उसको मैं पानी पिला सकता हूँ? नहीं, थोड़ा सा पानी, सिर्फ प्लेन पानी, RO का पानी, बिस्लरी का पानी नहीं, नो वाटर। दाल का पानी, चावल का पानी, वो भी नहीं? क्यों? क्यों? क्यों उसको नहीं पिला सकते? राइस का पानी, दाल का पानी क्यों नहीं पिला सकते? मेरा बच्चा, उसमें तुम्हें क्या लेन देन? क्या हो जाएगा? बच्चे को क्या हो जाएगा अगर पिला दो? डाइजेस्टिबिलिटी कम है। अगर कोई, ऑफ कोर्स आप लोग तो इंडियन गाइडलाइंस पढ़े हो, अगर US का थोड़ा बहुत किसी को पता हो, वैसे ही जर्मनी में, US में, UK में
उधर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देते हैं या शुरू से फॉर्मूला फीड वगैरह डाल देते हैं? एक्सक्लूसिव है वहां भी? वहां क्या है? फॉर्मूला फीड तो गोरों का बच्चे का हजम हो जाता है, हमारे बच्चे खराब निकल क्वालिटी का आता है पीछे से। हमारे बच्चे की इंटेस्टाइन लोकल क्वालिटी की है, उनकी फॉरेन क्वालिटी की है। हमारे बच्चे को नहीं हजम होता दाल का पानी, उनके बच्चे को चिकन का पानी, मटन का पानी, वो भैंस भूस सब खिला गए। हाँ जी, कंट्री टू कंट्री। हंगरी कंट्री, पुअर कंट्री, हमारा खराब बच्चा। सब भगवान ने ऐसे लो क्वालिटी माल इधर भेजता है। क्यों मना करते होंगे? ये डाइजेशन नहीं है, इट्स नॉट अबाउट डाइजेशन। डाइजेशन तो बच्चा कर ही लेता है, मतलब अगर हम देंगे प्रॉपर तरीके से तो डाइजेस्ट तो कर ही लेता है। प्रॉब्लम क्या है, भारत में जो पानी सप्लाई आता है ना, पानी सप्लाई जो है, या तो वो आप पूरा फिल्टर कर लो, बट 97% ऑफ इंडियन पीपल दे आर इन रूरल एरियाज। रूरल में से डू यू नो ओनली 30% ऑफ इंडियंस दे हैव एक्सेस टू सेफ वाटर। 70% लोग तो कुएं कुएं का इधर उधर से सीधा नदी से कनाल से पानी एक बाल्टी में भर के 3-4 घंटे रख के। याद है मैंने आपको पढ़ाया था, सेडिमेंटेशन से 70-80% बैक्टीरियल लोड कम हो जाता है। सो लोग बस वही करके पानी पी लेते हैं। आरओ तो बहुत कम शहरों में है, गांव में कोई आरओ इतना ज्यादा नहीं यूज कर पाते। सो द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट फूड, द प्रॉब्लम इज अबाउट कि वो अगर फॉर्मूला मिल्क पिलाना है तो फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट तो नहीं ना पाउडर पिला देंगे, घोलना पड़ेगा, घोलने में इन्फेक्शन आ जाता है इंडिया में। इट इज बट नेचुरल। सो ओनली रीजन व्हाई डू वी हैव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, ये क्यों करते हैं बेटा? इट इज डन टू प्रिवेंट, इट इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। बस एक ही आंसर है हमारे पास, और कोई दूसरा आंसर नहीं है। दूसरी बात ये बताओ कि मदर्स मिल्क मैक्सिमम कब सिक्रीट होता है? 5 to 6 months। कितना होता है? गुड आंसर, वेरी नाइस, 730 ml विच इज सिक्रीटेड मैक्सिमम एट 5th-6th month। तो अब अगर ये दोनों बातें जानते हो तो अब बताओ 6 महीने तक क्यों देते हैं? कॉमन सेंस बड़ा, मतलब इसमें तो दिमाग लगना ही नहीं चाहिए तुम्हारा, जब तुम खुद ही कह रहे हो कि माँ का दूध जो है, तुम खुद ही कह रहे हो कि मदर्स मिल्क जो है मैक्सिमम कब आता है, मतलब जैसे जैसे बढ़ता है, फिर मैक्सिमम का क्या मतलब होता है? पीक ना। तो मैक्सिमम कब आता है? 5th-6th month में। तो ब्रेस्ट मिल्क कब तक पिलाना चाहिए? ऑब्वियसली यहीं तक पिलाओगे, क्योंकि बच्चा तो बेटा, बच्चा तो नहीं ना ऐसे ग्रो कर रहा, बच्चा तो ऊपर को जा रहा है ना। तो जब दूध कम होएगा तब हम बंद कर देंगे पिलाना। सिंपल सा लॉजिक नहीं लग रहा? अगर मान लो किसी देश का बाई चांस वैसे ही, मान लो आज से 2000 साल बाद चेंज हो गया, ह्यूमन चेंज हो गए, हम लोग चेंज हो गए, कि जो मदर्स मिल्क है वो मैक्सिमम 4 महीने तक आता है, तो सरकार क्या बोलेगी? 4 महीने के बाद बंद करो, एक्सक्लूसिव। कॉमन सेंस है। सो दैट इज द रीजन दैट वी डू इट टिल 6 months। व्हाई 6 month? इट इज बिकॉज द मदर्स मिल्क इज मैक्सिमम ओनली अप टिल 5th-6th month। उसके बाद बच्चा ग्रो कर जाता है, मदर मिल्क कम हो जाता है, right? And it is done exclusive, why? To prevent the infection. This is government of India program, माँ program, that is to, it is BFHI बेटा, उसमें 10-12 पॉइंट्स होते हैं विच वी कैन नॉट, हमारा अस्पताल नहीं कर सकता BFHI। सो वी हैव मेड आर माँ गाइडलाइंस। सो माँ गाइडलाइन इज लोकल गाइडलाइन ऑफ द BFHI गाइडलाइंस। ये 1.15 क्या होगा? ये क्या अल्फाबेट क्या दिख रहा है? तो बस, याद है तुम्हें? लक्ष्य, सकुशल, मुस्कान। क्यू, क्यू क्या होता है? क्वालिटी। सो दिस प्रोग्राम इज द सिंबल फॉर द नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। क्यू दिख रहा है ना? एन कैप या एनकैस, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस लोगो बेटा? 1.16। 1.16 किस चीज का लोगो लग रहा है? ESI, वेरी नाइस। हाउ विल यू रिमेंबर? जस्ट रिमेंबर दिया।
मैंने ऐसे याद किया, दीपावली दिया किसके घर में, दिया कौन लोग जलाते हैं नॉर्मली, अमीर लोग या लोअर, लोअर वाला लेबर क्लास। जस्ट रिमेंबर लेबर क्लास, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, दिया है ना, दिया, दीपावली दिया। सो उनके घर में उजाला किससे होगा, वो दीपावली दिया। जस्ट रिमेंबर समहाउ रिलेटेड टू लेबर क्लास, लेबर क्लास मिनिस्ट्री लेबर, मिनिस्ट्री लेबर इज ESI प्रोग्राम। व्हाट इज दिस लोगो फॉर 1.17? क्यों बोले ICDS? चाइल्ड इंटीग्रेटेड इनटू द मदर, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। व्हाट इज दिस फॉर 1.18? ये कौन सा फ्लावर है, किस चीज का फ्लावर दिख रहा है? आर्जिमोन, वेरी नाइस। क्यों बोले आर्जिमोन? बिकॉज यू रिमेंबर येलो कलर मस्टर्ड में अडल्ट्रेशन करता है। व्हाट इज दिस सिंबल फॉर 1.27? यूनाइट टू एंड टीबी, ये सिंबल होता है एंडिंग टीबी। दिस सिंबल इज फॉर एंडिंग टीबी। व्हाट इज दिस सिंबल फॉर? क्यों बोले एनीमिया मुक्त भारत? ड्रॉप बना हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, तुम्हारे पास सबका आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा, दिस इज 1 2 3 4 5 6। You remember 6 by 6 by 6 program. What is 6 by 6 by 6 program? 6 intervention, 6 beneficiaries. What is this logo? जब भी इन्वर्टेड ट्रायंगल देखो, इन्वर्टेड ट्रायंगल इज द सिंबल फॉर फैमिली प्लानिंग। ये ग्लोबल सिंबल है, वर्ल्ड का सिंबल है। Inverted triangle is the symbol for family planning. So this is the logo for National Family Planning Program. This is the logo for National Family Planning Program. अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इट इज अ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये क्या लोगो है, शक्ति और बुद्धि का रक्षक, सूरज बनाया बीच में। वेरी नाइस, दिस इज आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। Iodine deficiency disorder control program. National Iodine Deficiency Disorder Control Program. What is this logo for 1.35? सपना मीना, मीना क्यों बोले मीना, तोता। What is 1.36? सपना क्यों बोले सपना, स्कूल बैग। What is 1.38? What is 1.38? National Mental Health Program. What is this logo for? This symbol 2.2. This is sandfly. क्यों बोले sandfly? Hairy insect. Correct answer. This is sandfly. कौन होता है sandfly? Phlebotomus argentipes. Phlebotomus argentipes. Next is ये कौन है? कौन है ये? टिक। और ये भी टिक। सारी दुनिया टिक। ये माइट है। और ये कौन है फिर? ये माउस, लाइस। दिस इज अ लाउज, यहां तक तो ठीक है। दिस इज अ लाउज। बेटा जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो बड़ा इजी होता है, देखना। आपसे सवाल आएगा कि माइट कौन है, हार्ड टिक कौन है, और सॉफ्ट टिक कौन है। तो दीज आर सम ऑफ द MCQs जो पूछे जाते हैं। माइट कौन है, हार्ड टिक।
हमेशा याद रखना, माइट इज ओवल। हार्ड टिक भी बेटा ओवल होता है, सॉफ्ट टिक को ध्यान से देखोगे वो भी ओवल होता है, तो कोई फर्क नहीं है। माइट को देखोगे बेटा, उसके 4 लेग्स एक साइड पे होंगी, एंड ऑब्वियसली 4 ही दूसरी साइड पे होंगी। टिक को देखोगे, उसकी भी 4 लेग्स एक साइड पे होंगी, और सॉफ्ट टिक की भी मजेदार बात है, चारों लेग्स एक साइड पे है। तो मतलब ना टांगे बताएंगी आपको, ना लाते बताएंगी, ना उसकी बॉडी बताएगी कि कौन 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 है। बेटा अगर आपने माइट को ध्यान से देखा तो जो इसकी अगली टांगे है ना, अगली टांगे, फ्रंट लेग्स, दीज आर वेरी थिक। ये थिक एंटीरियर लेग्स होती हैं, दे हैव थिक एंटीरियर लेग्स। क्योंकि ये थिक होती हैं एंटीरियर लेग्स, दैट इज द रीजन ये लोग हमारे स्किन में घुस के अटैच हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज इच माइट। सो इच माइट को अगर आपने ध्यान से देखना है तो इसकी अगली टांगे देखना, दे विल हैव थिक एंटीरियर लेग्स। इनकी अगली पिछली टांगे फर्क है। सो इसकी आप लातें देख सकते हो, अगली लात देखो, देन पीछे, देन और पीछे, देन और पीछे, जैसे जैसे यू गो बैक साइड, इसकी लेग्स की थिकनेस कम होती जा रही है। आगे वाली लेग्स ज्यादा डेवलप्ड है, पीछे वाली थिन है। राइट, दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ इच माइट। इसका क्या नाम है? इच माइट। इच माइट क्या कॉज करता है बेटा? इच माइट इज द अदर नेम फॉर सार्कोपिटिस स्केबी। इट विल कॉज स्केबीज। सार्कोपिटिस स्केबी। दिस विल कॉज व्हाट डिजीज? ऑब्वियसली स्केबीज ही करेगा ना, और तो क्या करेगा। जो है बाकी बचे अब हार्ड टिक, सॉफ्ट टिक, इनकी लेग्स सेम होती हैं बेटा, इनकी लातें सेम टाइप की हैं। अब हाउ विल यू डिफरेंशिएट हेड टिक एंड सॉफ्ट टिक? हेड टिक में हार्ड हार्ड टिक में हेड दिखता है, हार्ड टिक में हेड दिखेगा, सॉफ्ट में हेड नहीं होता, दिखता नहीं। दिखता नहीं का मतलब होता नहीं, या होता है पर वो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ, इट इज मोर डॉर्सल। सो अगर हेड दिख गया, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड टिक। नहीं दिखा, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट टिक। तो ये कौन सा टिक है बेटा? हार्ड टिक। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी द हेड। ये कौन सा टिक है बेटा? ये सॉफ्ट टिक है। राइट। वो बेचारे की टांग एक कम है, बट है इसके पास 4। वो टूट गई थी फोटो खींचते टाइम, बट है इसके 4 लेग्स हैं। ये कौन है? लाउज। लाउज कैसे पहचानोगे? एल फॉर लाउज, एल फॉर लॉन्ग। ये इलोंगेटेड है। माइट टिक, दीज आर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स। रेडोविड बग क्या कॉज करता है? रेडोविड बग, इट इज नोन टू कॉज ट्रांसमिट। सुना आपने? चागास डिजीज सुना है कभी? नहीं, इट इज फॉर चागास डिजीज। सेट्से फ्लाई, इसको बेटा टीएससी लिखते हैं, पर इसको टसी टसी नहीं बोलना, इसको बोलते हैं एसईटीएससी। पहला टी इज साइलेंट। सो सेट्से फ्लाई बोलते हैं, टीएससी नहीं, सेट्से फ्लाई। सेट्से फ्लाई कॉजेज व्हाट डिजीज? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। इनके शेल से भी पता चल रहा है बेटा। शेल कई दफा धोखा दे जाएगा आपको एग्जाम में, तो आप कंप्यूटर को टच करके नहीं ना बता पाओगे ये हार्ड टिक है, ये सॉफ्ट टिक है। शेल तो कई दफा धोखा दे जाता है। ये हार्ड सॉफ्ट टिक जो है ना, वो ऑनलाइन बोल रहा है कि शेल से भी पता चल जाता है, शेल से नहीं पता चलता। व्हाई? बिकॉज सॉफ्ट टिक ये तो दिख रहा है कि सॉफ्ट है, बट समटाइम्स जब ये खाना ना ना खाए,
तो ये बेचारा छोटा सा इसके जितना ऐसा मरा सा दिखता है। आपने किसी ने अगर घर में कोई जानवर पाला है, कुत्ता बिल्ली, तो कई दफा उस पे टिक्स पड़ जाते हैं, जिसको हिंदी में चिच्चड़ बोलते हैं, है ना। तो ये वो जो टिक्स हैं वो कई दफा खून चूस चूस के इतना मोटा हो जाता है, कई दफा छोटे से होते हैं। तो वो दोनों सॉफ्ट टिक्स की प्रजातियां होती हैं। और हर एक के अपने अपने टिक्स हैं। इंसान के ह्यूमन टिक्स होते हैं, कुत्ते के डॉग टिक्स होते हैं। ये हर एक का अलग अलग टिक्स होते हैं। व्हाट इज दिस मॉस्किटो बेटा? Anopheles. What is this mosquito? Correct answer. This is Anopheles. Second one is Aedes. And last one is Culex. याद रखना मेरी बात कि उसका सिर कहाँ है, हेड कहाँ है मॉस्किटो का, वो आपको कभी भी आंसर नहीं बताएगा। मच्छर का सिर मत देखना, मच्छर का देखना पूंछ कहाँ है। ध्यान से सुनना, इफ द हेड तो हमेशा ही बेचारे का डाउन होगा ना, वो तो खून चूसने के लिए सिर तो डाउन होगा। अगर पूंछ, ध्यान से सुनना, अगर पूंछ ऊपर की तरफ है, इफ द हेड इज डाउन एंड जो टेल है वो ऊपर की तरफ है, अप है, इसको क्या कहते हैं? याद रखो, एनोफिलीज, एनस अप, एनोफिलीज। इसका एनस अप हो गया। नेक्स्ट इज, अगर पूंछ पैरेलल है, पैरेलल, तो ये क्या बोलेंगे? एडीज। अगर पूंछ नीचे को आ गई, इसको क्या बोलेंगे? क्यूलेक्स। सो सिर के पीछे मत जाना, आप उसका पीछे वाला पूंछ देखो, पूंछ बताएगी आपको कौन सा मच्छर है। इफ यू लुक एट देम, हर एक का सिर आपको दिख नहीं रहा कि नीचे ही होता है सिर? तो सिर कोई मच्छर, मतलब उसने खून चूसना, ऊपर उठा के कैसे चूसेगा, है ना। सिर तो नीचे ही होगा ना बेटा, और तो कोई तरीका नहीं है मच्छर के पास। तो उसकी पूंछ बताएगी ऊपर है या पैरेलल है या नीचे है। राइट, सो इट्स नॉट अबाउट द हेड, इट इज अबाउट द टेल। पूंछ बताएगी। ये कौन है? एयर इंडिया का जहाज सा बन के टेक ऑफ कर रहा है। हाँ जी, एयर इंडिया। रेड, रैट फ्ली, वेरी नाइस। रैट फ्ली। रैट फ्ली को फ्ली क्यों बोलते हैं? नहीं, रैट फ्ली को रैट फ्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रैट पे, मैं क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा। मैं पूछ रहा हूँ फ्ली को फ्ली क्यों बोलते हैं, फ्ली को फ्लाई क्यों नहीं बोलते, रैट फ्लाई क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये उड़ता नहीं है। क्यों नहीं उड़ता? पंख ही नहीं है। अगर पंख होते तो हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लाई। जिसके पंख हैं वो फ्लाई, जिसके पंख नहीं है वो नहीं। जरूरी थोड़ी ना आपके पंख नहीं है आपको फ्ली। जिसके पंख नहीं है उसको फ्लाई नहीं बोलेंगे, बाकी जो मर्जी बोलते रहो। सो इसको पंख नहीं है तो ये फ्ली बोल देंगे, फ्लाई नहीं बोल सकते इसको। याद रखना, एग्जाम में फ्ली और फ्लाई सेम दिखेंगी। फ्ली में नो विंग्स, फ्लाई में विद विंग्स। राइट, वेरी फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट टाइम मैं इसको इसके साथ प्लेस करूंगा, एंड तब आप महसूस करेंगे कि ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। बट ऑफ कोर्स दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। बताया था ना आपको, सैंडफ्लाई बहुत छोटी चीज होती है, ये तो थोड़ी सी बड़ी होती है, रैट फ्ली। तो रैट फ्ली इधर से उधर कैसे जाएगा? पंख तो है नहीं, जंप करके। ये तो चल के ही जाएगा, जंप भी कर सकता है, इसकी मर्जी है। जंप करके ज्यादा ये जाएगा। राइट, वो सैंड फ्लाई था जो जंप कर करके जाता था। रैट फ्ली में पंख नहीं है तो ये चल के जाए, जंप करके, भाग के जाए, उसकी अपनी मर्जी है, उड़ के नहीं जाएगा। राइट है। रैपिडो, रैपिडो कौन है? रैपिडो कौन है? रैट। बिल्कुल रैपिडो ही करेगा, वो अगला आया इसको लेके चला गया। रैट के ऊपर ये बैठती है, ये सवारी करती है रैट की। बट ऑफ कोर्स वो भगवान नहीं है, बट दैट्स हाउ इट इज। ये रैट की सवारी करती है, रैट फ्ली, इट सिट्स ऑन द रैट, एंड जहां जहां रैट जाएगा ये उसके साथ साथ चलती रहती है। ये कौन सा है डिस्कार्ड पॉइंट, कौन सा दिख रहा है इसमें? डी। ये क्या है? 3.3, 3.3।
अच्छा, दिख क्या रहा है, मतलब क्या टॉपिक क्या सोच रहे हो? न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, फ्लाई, मॉस्किटो, क्या दिखता है तुम्हें, ये क्या लग रहा है? थर्मोमीटर लग रहा है। चलो, वेरी नाइस, थर्मोमीटर पहुंच गए। जब भी, हाँ, जब भी एग्जाम में बेटा रेड कलर का ये फीचर है। नॉर्मली थर्मोमीटर तो सिल्वर होगा, उसमें जो पारा होता है, जो मर्करी होती है, दैट इज व्हाइट और सिल्वर। इसका रेड कलर होता है, ये बनाया जाता है रेड कलर में। इसका नाम होता है काटा। काटा थर्मोमीटर, रिमेंबर, रेड बल्ब, रेड कलर फ्लूइड, इट इज काटा थर्मोमीटर। रिमेंबर, रेड कलर फ्लूइड इज काटा थर्मोमीटर। ये क्या है 3.4? ऐसे ऐसे पकड़ के घुमाना होता है बेटा, इसको कहते हैं स्लिंग साइक्रोमीटर। इट इज कॉल्ड एज स्लिंग साइक्रोमीटर। ये क्या बताएगा स्लिंग साइक्रोमीटर? एयर वेलोसिटी या ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी। इसके नीचे अगर आप वैसे ही, मतलब आई डोंट वांट टू ट्रबल यू, बट वैसे ही अगर आप इसको जूम इन करो, देखो, तो ये पकड़ने का है। इसके अंदर दो थर्मोमीटर्स हैं। एक थर्मोमीटर के आगे, पता नहीं आप अप्रिशिएट कर पाए कि नहीं, बट वन ऑफ द थर्मोमीटर, इट हैज अ कॉटन अटैच टू इट। दिख रहा है आपको? ये जो है, दिस इज अ कॉटन विच इज अटैच्ड, मतलब ये एक वेट होता है और ये एक ड्राई होता है। तो इसको हम घुमाते हैं, तो जो गीले वाला है वो सूख जाएगा। वो पहले वो कुछ टेम्परेचर शो करेगा ना। जब वो इनिशियल, मैंने पहले वाला थर्मोमीटर को गीला किया, वी पुट अ वाटर ड्रॉप, एंड इट विल इंक्रीज थोड़ा सा टेम्परेचर, मतलब डिक्रीज, क्योंकि ठंडा होगा। एंड जब आप घुमाओगे तो ये ज्यादा ठंडा होगा ना। सो वो किस पे डिपेंड करेगा? ये सूख गया तो ठंडा हो जाएगा ना, इवेपोरेट हो गया ना। अभी एबल टू गेट इट? अब ये जब इवेपोरेट होगा, ये किस पे निर्भर करेगा कि इवेपोरेट हुआ? आप कोई कपड़ा बाहर सूखने डालते हो, वो कब ज्यादा सूखता है? जब ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ये वो मेजर कर रहा है। अब एबल टू गेट इट? घुमा के देखते हैं वो कितनी की देर में। अगर तो नमी ज्यादा है तो वो कम ड्रॉप होगा टेम्परेचर। अगर नमी कम है, मतलब ह्यूमिडिटी इज लो, सो ये जल्दी सूख जाएगा। तो ये ज्यादा जल्दी ड्रॉप होता है। ये सेम प्रिंसिपल यूज करते हैं काटा में भी। काटा क्या बताता है? कूलिंग पावर। ये वही है कि कितनी जल्दी आप ठंडा करते हो। याद है आपने पढ़ा था कि देर इज एयर टेम्परेचर। यू रिमेंबर, यू स्टडीड एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, एंड कूलिंग पावर ऑफ एयर। ये पढ़ा था। कूलिंग पावर मतलब कौन कितनी जल्दी ठंडा करता है। अगर आप कूलर के आगे, पुराने जो कूलर लगे हैं उनके आगे आप बैठ जाओ और एसी के आगे बैठो, ज्यादा अच्छी ठंडी हवा कहाँ आएगी? क्यों? बिकॉज दैट इज लो ह्यूमिडिटी, लो मूवमेंट, एंड लो टेम्परेचर। कूलर में ओके टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, एंड वेरी हाई वेलोसिटी, वो तो फर करके हवा फेंकता है। सो कूलिंग पावर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ऑल थ्री। और जब आप इन चारों को इकट्ठा देखते हो, दिस इज इन इंग्लिश वी कॉल इट एज ईटी। यू रिमेंबर दिस? एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, कूलिंग पावर, एयर मूवमेंट, एक्सेप्ट द रेडियंट हीट, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव टेम्परेचर। तो अभी जैसे आप लोग जिस भी बैठे हो, अभी आप लोग बैठे हैं, एसी चल रहा है, यू आर सिटिंग एट कंफर्ट या नहीं कंफर्ट, डिपेंडिंग कि आप ठीक ठाक बैठे होगे। बट एट द सेम एयर टेम्परेचर, मैं भी तो बैठा हूं, सेम एयर टेम्परेचर, सेम एयर टेम्परेचर, सेम एयर ह्यूमिडिटी, बट यू माइट नॉट बी वेरी, यू माइट नॉट हैव दैट, क्योंकि एसी आपको ठंडा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर है ही नहीं एसी। अगर ये इवेंट मेरे ऊपर होता
तो मैं भी बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता कि भाई साहब चलो। आर वी गेटिंग इट? सो एयर मूवमेंट, सेम एयर टेम्परेचर, तो ये सारी चीजें मिला के हम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं। सो ये एग्जाम में काफी दफा पूछा जाता है। इट इज अ 5 स्टार एमसीक्यू, स्लिंग साइक्रोमीटर एंड काटा थर्मोमीटर्स। ये दोनों 5 स्टार एमसीक्यू है। दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड दैट कितनी देर के लिए घुमाना पड़ेगा। 1 to 2 मिनट्स के लिए होता है। इनका स्केल बना होता है कितने रेवोल्यूशंस देने हैं। बाकी तो सब तुम कर लोगे। ये कौन है? 3.10। कितना तो पढ़ाया तुम्हें। हॉर्रॉक्स अपरेटस याद है? हॉर्रॉक्स अपरेटस, इसमें याद है 6 कप्स होते हैं। एक पिंक होता है, या यहाँ पे पिंक है, वैसे वो ब्लैक कलर कप होता है। तो ये स्टार्च आयोडीन है। एंड इसमें हर एक में हम डाल लेंगे, गेम खेल लेंगे। राइट। ये क्या है? ये प्रिंट आउट है, कोई प्रिंटर सा लग रहा है। हाँ प्रिंटर है, तो प्रिंटर में कार्ट्रेज जाती है, तो कार्ट्रेज वाला कौन सा टेस्ट हुआ? कार्ट्रेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इस मशीन का नाम क्या होता है? वेरी नाइस, यू रिमेम्बर, दिस इज जीन एक्सपर्ट। दिख रहा है तुम्हें ये? मशीन का नाम इज जीन एक्सपर्ट। बेटा इसका सीबी नेट का एक छोटा भाई है, उसका नाम पता है? सीबी नेट तो बड़ा टेस्ट है, इसका एक छोटा इंडियन वर्जन है। इंडियन वर्जन ऑफ सीबी नेट क्या बोलते हैं उसको? इट इज कॉल्ड एज ट्रू नेट। तो सीबी नेट छोटा भाई ट्रू नेट। ट्रू नेट इज ऑल्सो लाइक सीबी नेट, सेम आंसर। बट इंडिया में कौन सा यूज करते हैं? वी यूज सीबी नेट ओनली, बट ट्रू नेट इतना यूज नहीं होता अभी के लिए। आगे चल के कब हम यूज करें वी डोंट नो, बट अभी के लिए यही है। ग्राफ वगैरह सब आपने बायोस्टैट्स में करे होंगे, राइट? व्हाट इज दिस ग्राफ? स्कैटर प्लॉट। व्हाट इज दिस? कॉपर टी। गलत हो गया बेटा, कॉपर टी को कहने के लिए कॉपर होना अनिवार्य होता है। कॉपर तो नहीं ना? हाँ ये हार्मोनल आईयूडी है। दिस इज मिरेना। मिरेना। एंड व्हाट इज दिस? 5.4। 370। कॉपर टी है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये टी शेप ही नहीं है। टी शेप के लिए टी शेप होना जरूरी है। सो इट इज अ कॉपर 375 मल्टी लोड डिवाइस। निश्चय, निश्चय किस लिए? यूरिन प्रेगनेंसी। ये क्या सिस्टम है 5.11? जननी सुरक्षा क्या कार्यक्रम? जननी सुरक्षा कार्यक्रम बेटा पैसे दे रहे थे, इंसेंटिव, ये वो है। एवरी 9th। हाँ तो क्या था प्रोग्राम का नाम? वेरी नाइस। सुरक्षित मातृत्व अभियान। वेरी नाइस। अभी तो सारा तुम्हें पढ़ा दिया ना, मजा तब आता है अगर तुम चढ़ चढ़ के बोलो सर इसमें ये था ये था ये था। सारा तो पढ़ लिया, अब उसके बाद भी मैं तुम्हें याद कराऊं कि ये क्या था, फिर तो दुख वाली बात होती है। पीएमएसएमए में क्या करना था? व्हाट वाज वन वर्ड, अगर आपने पढ़ाना हो मेरे को कि पीएमएसएमए में क्या करते हैं? इसमें वन वर्ड में बोल दो क्या था? क्या था? एमपीडब्ल्यू। हाँ। हाई रिस्क कलर कोडिंग था। और क्या था? एक वर्ड में अगर सब बोलना हो तो कैन वी से इट इज एंटीनेटल केयर, स्क्रीनिंग कर रहे हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। एएनसी स्क्रीनिंग थी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये क्या प्रोग्राम है बेटा? राष्ट्रीय
बाल स्वास्थ्य। बाल तो चलो यहाँ पे बालक दिख रहा है हमें, बट ये यहाँ पे प्रोग्राम में क्या देख सकते हो, इस लोगो में क्या देख सकते हैं, क्या स्पेशल दिख रहा है लोगो में? काइट। सो रिमेंबर, के फॉर काइट, के फॉर RKSK। व्हाट इज दिस प्रोग्राम? राष्ट्रीय किशोर, एस क्या है? स्वास्थ्य कार्य। किशोर किसके लिए था? एडोलसेंट एज ग्रुप। वेरी नाइस, 10 to 19। बॉयज और गर्ल्स और बोथ? बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। याद है, देख सकते हो, ये बॉय है, ये छोटा बच्चा है 10 से 15 साल का, 12 साल का। ये कौन है? हु इज दिस? गर्ल है, बॉय है? गर्ल है ना, ये बाल देख सकते हो लड़की वाले, और इसके बाल देख सकते हो मैचो से हेयर है। सो ये कौन है? ये किशोर है, ये किशोरी है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, छोटू को लगा दिया तू पतंग उड़ा। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? बातें। साथिया अप्रोच, याद है? साथिया अप्रोच, फ्रेंड टू फ्रेंड अप्रोच, साथिया अप्रोच। इट इज फॉर एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। ये क्या है? ये तो अब तुम थक गए हो गए आंसर कर करके। ये कितने लेवल पे है? 97.5। ये -2 ये। और अगर कोई बच्चा येलो जोन में हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज। बस एक क्वेश्चन नया पूछ लो वहीं पे शांत। थोड़ा सा दिमाग ना लगाना, खुरचना, न्यूरॉन जंग लग जाएगा ऐसे, थोड़ा खर्चा करो दिमाग को। अगर ग्रीन जोन में, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अगर रेड जोन में या पिंक जोन में है, सिवियर। तो बीच वाले को क्या बोलते? माइल्ड बोलते हैं या मॉडरेट या दोनों? Very nice information. Please note, this is called as mild to moderate malnutrition. Why? Because there is nothing called as mild and nothing called as moderate. एक ही है हमारे पास। नो malnutrition मतलब नॉर्मल चाइल्ड, malnutrition मतलब माइल्ड भी, मॉडरेट भी, या सिवियर malnutrition। जैसे निमोनिया, नो निमोनिया, निमोनिया, सिवियर निमोनिया होता है ना, वैसे ये होता है malnutrition, नो malnutrition एंड सिवियर malnutrition। So this is a mild to moderate malnutrition। ये किस चीज का क्लिनिक है? अभी तो किया आपने, अंडर 5 क्लिनिक। ये किस चीज के चार्ट्स हैं? IMNCI charts। वेरी गुड, दीज आर IMNCI charts। ये पढ़ा तुमने पीडियाट्रिक्स में? पिंक कैटेगरी, येलो कैटेगरी, ग्रीन। पिंक में क्या करना होता है? रेफरल। येलो में क्या है? ट्रीट एंड फॉलो अप। ग्रीन में क्या है? होम बेस्ड केयर। ये सारा आप कर चुके हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट द इमेजेस। बेटा ये काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन आपको कभी भी पूछना हो ना, यू आर वेरी वेलकम टू शूट योर क्वेश्चंस ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। सो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप इसी पे ही क्वेश्चंस पूछो। बाकी कहीं पूछ लोगे तो मैं चलता फिरता आंसर नहीं कर पाऊंगा, बट टेलीग्राम को तो आई टेक टाइम एंड ट्राई टू आंसर एवरी डे इवनिंग, एक आधे दिन में कर देता हूँ। दिस होल ग्रुप आई एम हैंडलिंग माई सेल्फ, एंड टेलीग्राम में क्वेश्चंस आप आराम से पूछ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे, चैनल पे ऑल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, PSM के लेक्चर्स, कम्युनिटी मेडिसिन के लेक्चर्स सब इकट्ठे पड़े हैं। 3 घंटे में पूरी CHN है, 4 घंटे में पूरी 5 घंटे में पूरी CHN है, 9 घंटे की अलग वीडियो है। सो 3 घंटे जिसको जो चाहिए वो सुन सकता है, जिसको जितना प्रसाद मिलेगा वो उतना मिलेगा। सो 3 घंटे में अपना है, और 5 घंटे में भी वही मटेरियल है, 9 घंटे में भी वही है, with extra points। So for all the updates, you can of course follow on Insta, and but MCQs के लिए बेटा, I have only one portal that is in the group। टेलीग्राम में आप पर्सनल भेजोगे, मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा, बिकॉज वो रोजाना के नहीं तो 100 150 आ जाते हैं पर्सनल। वो नहीं होता, ग्रुप में आंसर करो। एंड ग्रुप इतना बड़ा हो गया है बेटा,
कि ग्रुप में आप क्वेश्चन भी पूछने से पहले अगर ग्रुप में सर्च ही कर लो ना कीवर्ड, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आप पूछने वाले हो वो वैसे ही सर्च करोगे, आपको वो क्वेश्चन किसी ना किसी ने पूछा होता है पहले, सो आपको वैसे ही मिल जाएगा। बाकी अगर नए क्वेश्चंस है, ऑफ कोर्स आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सो ये हमारे टेलीग्राम पे काम होंगे। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पॉइंट। These are, of course, many questions, but let us see. कुछ क्वेश्चंस रैंडमली वी कैन पिक अप एवरी फिफ्थ क्वेश्चन वी कैन सी। ये मिक्स बैग क्वेश्चंस है बेटा, थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस है। ये स्पेशल बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, पोस्ट क्लास के लिए। ये सुधीर सर ने बना के भेजे हैं मेरे को, तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, पढ़ो करो। अकॉर्डिंग टू नैको प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई रिस्क ग्रुप? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द नेशनल प्रोग्राम? Mahakumbh Mela, the government set up healthcare camps, mobile units, syndromic surveillance was done. What is this primary reason? Hmm? One, two, three, four. To confirm individual, to reduce medical, to very nice answer, correct answer. It is, sorry, it is option number four. To detect warning signals for disease outbreak. Epidemiological study includes all of the following except distribution, determinants, and disease frequency. It does not include the treatment. We talk about the causes of disease. Which of the following is the best study as per hierarchy of evidence? मेटा एनालिसिस, ये तो उल्टा पड़ गया यार, सारे आते हैं तुम्हें। Which of the following is a water based disease? Which vaccine will be placed in zone 3? Zone 3 कौन सा है भाई? ये सारे आते हैं, ये तुम्हारे ऐप से हैं क्वेश्चंस। स्लाइड सेम क्वेश्चन है, ये फिर वैसे ही मुझे चिपका दिया उसमें। तो ये कर चुके हो तुम, तो फिर क्या करना है? इन इंडिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ maternal डेथ? Which vaccine is contraindicated in SCID? क्यों? कॉमन सेंस, लाइव वैक्सीन है भाई, बाकी तो ठीक ठाक है ना। गिवन बिलो इज ग्राफिक, व्हाट टाइप इज ग्राफिकल? कंपाउंड या कंपोनेंट? कंपाउंड क्या होता है और कंपोनेंट क्या होता है? हाँ, तो ये कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट है। तो कंपाउंड में स्टैकिंग भी होगी, दो तीन और बार्स होंगे, सो ये कंपोनेंट बार चार्ट कहलाता है। विच इज द एक्सेप्टेबल टाइम फॉर इंसर्शन? Immediate, within 48 hours, until 7 days, within 7 days before the next menstrual cycle. One, two, and three. ये एमटीपी तुमने गाइनी में कर लिया? यस। सो टू रजिस्टर्ड इज टू डू टिल 22 24, 24 के बाद अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, यही तो सबसे बड़ा काम हुआ है 24। अब एमटीपी के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई एज नहीं है एमटीपी के लिए, जब मर्जी कर दो एमटीपी। बट कुछ रूल्स हैं। अगर 20 हफ्ते से पहले है तो हमें कितना डॉक्टर चाहिए? वन डॉक्टर। 20 से 24 हफ्ते है, दो डॉक्टर। 24 के बाद कर सकते हैं बाय एथिकल बोर्ड, उनकी मर्जी है, वो करें ना करें, उनका सिस्टम। कर कभी भी सकते हैं। एथिकल बोर्ड जो है उसमें कौन कौन होता है? गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, सर्जन होता है, पीडियाट्रिशियन होता है। दे विल असेस के बच्चे को ट्यूमर या कोई कैंसर या कोई जेनेटिक बीमारी कोई है, किन डिजीजेस में कर सकते हैं।
हाँ, जेनेटिक डिजीजेस जहां पे वो लाइफ थ्रेटनिंग होगा, राइट। पहले कुछ डिफाइंड कंडीशन थी, सोशल कॉजेज, ह्यूमैनिटेरियन कॉज, वो सब अब बंद हो गया, जब मर्जी करा लो एमटीपी, राइट, बट इट शुड बी लीगल एमटीपी। ये बंद हो गया बेटा प्रोग्राम, इट इज एक्चुअली फॉर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये थर्ड नंबर, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइव वैक्सीन? रिकॉम्बिनेंट। बाइटॉट हो गया ना। उम्र देखो ना, 3 साल का है। 2 लाख देना है इसको एवरी, सॉरी, दिस ट्रीटमेंट, सो डे 0, डे 1 एंड डे 14। दिस इज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स टू बी गिवन टू द चाइल्ड। ये बेटा या तो एज लेस देन 1 ईयर होगा, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, या मोर देन 1 ईयर या 2 ईयर, है ना। तो इसमें याद करो, 8 किलो का भी क्राइटेरिया होता है, 8 kg का भी क्राइटेरिया, 8 किलो से कम है या 8 किलो से ज्यादा है। सो अगर एज भी बड़ी हो और 8 किलो से कम हो बेचारा, तो उसको कम ही देना है। वेट का भी क्राइटेरिया, बिकॉज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, विटामिन ए इज फैट सॉल्युबल, तो बॉडी फैट परसेंटेज प्लेज अ रोल। तो उसको कम डोज में ज्यादा इफेक्ट मिलने वाला था, तो तुम उसको विटामिन ए टॉक्सिसिटी कर दोगे। इस वजह से वो 8 किलो का मोर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। ओके। ये पता नहीं, मेडिसिन में शायद तुमने करा हो, 65 के ऊपर कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं? नॉट नीडेड। अच्छा, विच वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन? ओके। हाँ हाँ, एचपीवी। इनमें से कौन सी वाली भारत में दी जाती है? भारत में इन्फ्लुएंजा तो नहीं देते। आप में से कितने के हैं जिनके दादा दादी को, नाना नानी को डॉक्टर ने वैक्सीन लगाई होगी? कोई नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा तो ये गोरों का सवाल है वैसे ही, तो ये तो नहीं है। भारत में कौन सी दी जाती है, मैं तो यही, पेंटावलेंट कहाँ लिखा है? पेंटावलेंट थक गई। पेंटावलेंट कहीं दिख रहा है तुम्हें? बताओ, कौन सी दी जाती है? पीसीवी कहाँ लिखा है? हाँ, तो सी तुम अपने आप ही जोड़ देते हो। तो जोस्टर वैक्सीन बेटा उन लोगों को दी जाएगी जिनको जोस्टर होने की संभावना है। बिल्कुल ठीक है। अमेरिकन देशों में दिस इज द गाइडलाइन, दे हैव टू गिव जोस्टर वैक्सीन। बट वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में भी देते हैं बेटा, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो या जिनको कोई रिस्क हो ऑफ न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस, उनको बेटा वी गिव न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन दो किस्म से आती है, पीसीवी एंड पीपीवी। पीपीवी होती है न्यूमोकोकल पॉलीसैकराइड वैक्सीन। पीसीवी तो तुम जानते हो, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बेटा ज्यादा इफेक्ट करती है, बेटर इफेक्टिव है, एंड इट इज गिवन टू यंग चिल्ड्रन। पीपीवी इज गिवन टू ओल्डर पीपल। सो यहाँ पे हमें पीपीवी देते हैं इंडिया में टू ऑल पीपल जिनको कोई रीनल डिजीज हो, स्पेसिफिकली स्प्लीन का कोई प्रॉब्लम हो, सिकल सेल डिजीज हो, न्यूमोकोकल को इन्फेक्शन बढ़ जाता है उन लोगों में। सो वी गिव न्यूमोकोकल वैक्सीन। वेल एनीवेज, योर आंसर ओवर हियर वाज करेक्ट, कि कौन सा नहीं देते? पैपिलोमा वायरस। इनहेलेशन ऑफ शुगर केन डस्ट। रूरल हेल्थ स्कीम वाज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रूरल हेल्थ स्कीम। रूरल हेल्थ स्कीम बेटा इसका स्पेसिफिक आंसर है श्रीवास्तव कमेटी। दिस इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, जहां पे उसने रूरल के ऊपर ज्यादा फोकस किया, श्रीवास्तव कमेटी। ये ट्राई करो मैच करने का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। मॉस्किटो से क्या होगा बेटा? मॉस्किटो से क्या होगा? ये कौन सा इंसेफेलाइटिस होता है? जापानीज इंसेफेलाइटिस को उसने वायरल लिख दिया। रैट फ्ली से प्लेग होगा। ब्लैक फ्लाई से ऑन्कोसेसियासिस होता है। सेटसे से
sleeping sickness, right? uh, ये करने की ट्राई करो, वैसे तो मैम ने करवा दिया तुम्हें, नर्सिंग रिसर्च मैम ने। एनालिसिस ऑफ प्रेवलेंस निकालना है। यू डिवाइड द पेशेंट इनटू थ्री ग्रुप्स, हाई, मिडिल एंड लो, सिलेक्टिंग वन फ्रॉम ईच। व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग? Divide into population into groups, that is stratified sampling. Correct answer, it is stratified random sampling. All are components except health functionaries. Blindness control, blindness किसको कहते हैं? Less than 3 by uncorrected, best corrected, presenting, best corrected vision। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, 3/60, ठीक है, 3/60 इज द बेटर आंसर। कंप्लीट क्लिनिकल क्योर ऑफ मलेरिया इज अचीव्ड बाय 4 क्यों नहीं बोलते हो? चलो, एक ऑप्शन अगर 1 2 3 4 भी होता, तब कौन सा चूज करते हैं? तब भी हम यही करते हैं। वो इसलिए बेटा, प्राइमा को वैसे ही पता होना चाहिए। इसने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। किसी ने क्वेश्चन पूछता, अच्छा क्वेश्चन पूछते पूछते बेचारा रह गया, सो ऑप्शन इजी बना दिए उसने। बट ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया किसी ने, कि उसने पूछा है व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर क्लिनिकल क्योर। तो जो क्योर है ना बेटा, वो इनसे होता है। तो प्राइमाक्विन हम देते ही क्यों हैं? याद है आपको, फैल्सीपैरम में 1 दिन दे रहे हैं, उसमें 14 दिन दे रहे हैं। तो फैल्सीपैरम ये प्राइमाक्विन करता क्या है? प्राइमाक्विन गिव्स अ लिटिल बिट क्योर, बट प्राइमाक्विन विल प्रिवेंट relapse of malaria. It is not for immediate cure. It prevents the relapse of malaria. Relapse prevention के लिए हम प्राइमा देते हैं। तो इसलिए फाल्सीपैरम में कम देने की जरूरत है, क्योंकि वो रिलैप्स कम होता है, वाइवेक्स रिलैप्स ज्यादा होता है। तो उसको 14 दिन तक हम देते ही देते हैं। यहाँ पे फैल्सीपैरम में कम देर के लिए रिलैप्स, मतलब नहीं होता रिलैप्स, तो कम देर के लिए दे देते हैं। सो गुड क्वेश्चन। क्लिनिकल क्योर इज गिवन बाय 1 2 एंड 3। कॉटन स्वाब कहाँ फेंकोगे? येलो। कायाकल्प किसके लिए? स्कीम है किसके लिए? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? To promote infection, to promote labor room, physical aids, quality of care during interpartum. It is for promoting the public healthcare facilities. It is for administration, कि आप कितना अच्छा अस्पताल चला सकते हैं। तो ये अस्पताल का जो इंचार्ज होता है ना, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसको अवार्ड मिलता है। हॉस्पिटल का अवार्ड है कि बड़ा सुंदर हॉस्पिटल है, उसका सुंदरता का अवार्ड है ये। एनएबीएच क्या होता है? एनएबीएल लेबोरेटरीज के लिए, एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज। ये कुछ बड़ा सा दिखता है, ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी बना रही है, मैच कॉलम में बेकार क्वेश्चन होगा। निक्षय क्या है? टीबी के लिए 90, ये सब कुछ ही टीबी के लिए है। सॉफ्टवेयर फॉर रिपोर्टिंग है ना, 99। सो द अनमोल इज एएनएम ऑपरेट्स द ऐप फॉर हेल्थ डेटा रिकॉर्डिंग। मैंने बताया था वो सर्वे करेगी, एंड शी विल बी एबल टू रिपोर्ट एक्यूरेटली। अनमोल हो गया, सजेशन 99 डॉट्स, आई थिंक यू शुड बी एबल टू। ये क्या है? अच्छा, वैक्सीन वाइल मॉनिटर बनाया, पीछे हिडन है, छुपा हुआ है कहीं। सेम कलर बनाने की ट्राई करी है। क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल्स आर मेजर ऑफ लोकेशन, डिस्पर्शन, टेंडेंसी या डिस्पर्शन? डिस्पर्शन। क्विंटाइल डेसाइल परसेंटाइल, अगर किसी के 95th परसेंटाइल आया है, तो ये क्या बताता है? डिस्पर्शन या ये उसकी लोकेशन बताता है कि भाई साहब ये 95%, 95 वाला डब्बे में बैठा है। 95th परसेंटाइल मतलब ही इज इन द 95th बॉक्स ना। सो इट टेल्स यू अबाउट डिस्पर्शन, फैलावट कितनी है, या लोकेशन बताएगा? लोकेशन बताएगा। कॉमन सेंस, राइट? व्हाट इज द एक्शन ऑफ डेपो प्रोवेरा? 3 months।
Gobi initiative. Which of the following is not a part of the Gobi? Growth, ORS, breastfeed, infection. Immunization is the part. Infection is not part. लो जी, टेटनस टॉक्सॉइड आ गया मेल. Clean cut wound without any bleeding. Patient received full course 10 years ago. What is the best management? Tetanus immunoglobulin, single dose tetanus, full course tetanus, tetanus immunoglobulin, and full course vaccine. Full course vaccine. यार कल तो पढ़े, इसमें फुल कोर्स वैक्सीन है. नहीं, 1 2 3 4. 3 ना, सिंगल डोज टेटनस टॉक्सॉइड जाएगा. पहली बात तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि ये क्लीन कट वुंड है, और ये कहीं नहीं लिखा कि 6 घंटे बाद आया है. तो अपने आप नहीं सोचना कि बंदा लेट ही आया होगा. ठीक है, ये कुछ नहीं लिखा. तो वी एज्यूम के एग्जामिनर इजी रख रहा है. अगर अगर एग्जामिनर थोड़ा क्रूअल होता तो वो आपसे वो 6 घंटे का पूछता. बट जनरली लोग अच्छे होते हैं तो वो इजी रखेंगे. तो क्लीन कट वुंड मतलब स्टेराइल इंजरी, और अनक्लीन इंजरी स्टेराइल. विदाउट एनी ब्लीडिंग है, पेशेंट रिसीव 10 years ago. तो कैटेगरी ए, बी या सी या डी? याद है वो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सी कैटेगरी में था? थर्ड में. जब उसने मोर देन 10 years, तो मोर देन 10 years में सिंगल डोज टेटनस लगेगी. ये करा हुआ है, तुमने पढ़ा है कुछ? क्या है ये? नहीं ना, छोड़ दो. ये रिसर्च में किया होगा यार. क्या है इसका आंसर? पीएचसी रिसर्चर मेजर द वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 100 पेशेंट्स विद डायबिटीज एंड फॉलोज अप आफ्टर 6 months. मेडिकल रिसर्चर एंड टेक्स द प्लेटफॉर्म. क्या करेगा? 1 2 3 4. 2 या 4? 4 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है. कौन सा, काई स्क्वेयर या? काई स्क्वेयर क्या है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. तो यहाँ पे पैरामेट्रिक डेटा है, नॉन पैरामेट्रिक? कौन सा है डेटा? डेटा कौन सा है, मतलब क्या चीज पैरामेट्रिक कह रहे हो? किस चीज को पैरामेट्रिक कह रहे हो? डेटा क्या इकट्ठा हो रहा है? हम्म. यार बड़ा सिंपल है. पता नहीं आपने कैसे पढ़ा हुआ है, बट ठीक है, ठीक पढ़ा हुआ है, ठीक कह रहे हो. आंसर क्या है, आपको क्या लग रहा है? पेड या अनपेड? एक कर क्या रहे हो यहाँ पे? एक रिसर्चर है, उसने वजन चेक किया 100 मरीज का डायबिटीज के साथ. बस यही किया उसने, और तो कुछ किया ही नहीं है. 100 लोग लिए डायबिटीज वाले, उसने 100 लोग लिए डायबिटीज मेलाइटस के. ऑनलाइन क्या बोल रहे हैं लोग? पेड टी टेस्ट, पेड टी टेस्ट, सबका आंसर पेड है. कुछ सी भी बोल रहे हैं. ओके, मोस्टली लोग पेड बोल रहे हैं. सो पेड है क्या, अनपेड है? पेड. सो 100 लोग डायबिटीज लिए, उनका उसने वेट चेक किया. वेट के बाद उन्होंने उसको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग दी. काउंसलिंग के बाद उसका दोबारा वेट चेक किया. तो कितने ग्रुप्स हुए बेटा? कितने ग्रुप्स हुए? 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप? 1 ग्रुप. कौन सा टाइप ऑफ डेटा है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है? वेट क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव 1 ग्रुप. तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस? पेड टी टेस्ट. इट इज पेड टी टेस्ट. अगर यही 2 ग्रुप्स में होता तो क्या करते हैं? अनपेड टी टेस्ट. अगर इसमें ही वो परसेंटेज कर लेते कि 100 लोग लिए और 100 लोग लिए, इनमें परसेंटेज ओबीज, वेट नहीं चेक कर रहे, परसेंटेज नॉन ओबीज, परसेंटेज ओबीज एंड नॉन ओबीज, ये क्या करते? तो क्या करते? वेट लेके आपने ओबीज नॉन ओबीज कर दिया. अब क्या करोगे? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस?
डेटा कौन सा है? ओबीज, नॉन ओबीज? क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा? क्वालिटेटिव। सो क्वालिटेटिव डेटा में कौन सा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मार्क करना है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लो, एक छोटा सा टेबल है, नथिंग मच। आपने एग्जाम में बेटा दो चीजें नोट करनी है। आपने एग्जाम में दो चीजें नोट करनी है, यू हैव टू नोट टू थिंग्स। सो यू हैव टू नोट टू थिंग्स बेटा। तुम्हें नर्सिंग रिसर्च में पी वैल्यूज पढ़ाई गई हैं? पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज कितनी होती हैं? बता। हाँ जी, टेबल से देखते हैं। कितने से ऊपर नीचे को हम नॉर्मल कहेंगे, सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट? 0.05। ये पढ़ा हुआ है तुमने? 0.05। 0.05 से कम है, लेस है, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट है। तो ये पी वैल्यूज आती कहाँ से है? टेबल से। पी वैल्यूज आती हैं बेटा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से। हाँ, तो वो काई स्क्वायर करोगे, टी टेस्ट करोगे, पेड अनपेड क्या क्या करेंगे, उससे क्या निकलेगा? पी वैल्यूज। एंड पी वैल्यूज बेटा या तो 0.05 से कम होंगी या 0.05 से ज्यादा होंगी। ज्यादा है तो नॉन सिग्निफिकेंट हुई, कम है तो वो सिग्निफिकेंट। तो जो चीज, ध्यान से सुनो, जो चीज हमें, जो भी चीज हमें पी वैल्यू दे, पी वैल्यू कुड बी ऑफ टू टाइप, सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट। तो क्या हम कह सकते हैं कि उस चीज का नाम विल बी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस? यही हुई कहानी, है ना? तो मतलब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? वो बेटा हमें पी वैल्यू निकाल के देते हैं, जिसके बेस पे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सा यूज करना है? ये तो मैथमेटिक्स है। अगर 2+4 - 5 इंटू 1 करते हो, तुम्हें बेड मास या बॉड मास का रूल याद है ना? कि एडिशन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, एक सीक्वेंस है ना? तो आंसर तो किसी भी तरीके से करोगे तो आंसर कुछ ना कुछ एक्स या वाई तो निकल ही आएगा ना। ये तो मैथमेटिक्स है ना। तुम नहीं फॉलो करोगे बेडमास तो भी कुछ आंसर आएगा, तुम फॉलो करोगे तो अलग आंसर है। आई यू वी गेटिंग इट? तो ये जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, ये भी उस तरह से होते हैं। तुम जहां पे पेड टी टेस्ट लगाना है वहां अनपेड लगा लो, आंसर तो आएगा पर वो गलत होता। तो कहने का मतलब है, हमारे पास ना, मेरे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास इमेजिन कर लो, मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं बेटा। इमेजिन कर लो मेरे ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर हैं। अब मैं क्या करूंगा, सारा डेटा इकट्ठा किया, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने अभी किया ना, कि वो डायबिटिक लिए, नॉन डायबिटिक लिए, 100% नहीं परसेंटेज या वेट लिया, वो सारा डेटा इकट्ठा करके मैं किसी एक कंप्यूटर में डाल दूंगा। वो कंप्यूटर विल जंबल एंड थ्रू आउट वन वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज पी वैल्यू। अब वो किस कंप्यूटर में डालने हैं वो आपसे पूछा जाता है, राइट? अब वो कंप्यूटर क्या फॉर्मूला लगा रहा है, काई स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होता है, ये कोई नहीं पूछता आपसे कि भाई कैलकुलेट द काई स्क्वायर। उसका ही फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, हमने सेल वैल्यूज देखनी होती है, बट वो आपके लेवल पे या एमबीबीएस के लेवल पे या एमडी के लेवल पे जरूरत ही नहीं है, कि आजकल कंप्यूटर आ गए हैं। आजकल तो हर चीज ही फोन पे हो गई है ना। तो पुराना जमाना था जब वो कैलकुलेशंस पूछते थे, अब काई स्क्वायर वगैरह पूछते हैं। ये जरूर पता होना चाहिए कौन सा किस टाइम पे यूज करना है। समझ गए? ये क्वेश्चन आते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही बात थी। वो क्वेश्चन बोलता है कि हमने ये किया, बताओ कौन सा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यही क्वेश्चन है। तो मैं भी यही समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको आएंगे ही ऐसे। इसमें ये नहीं सोचना कि क्या कैलकुलेशन है, सर ने कराई नहीं कराई, मैम ने कराई, वो सब बेकार है।
जैसे आपके पास मोबाइल फोन होंगे ना, हर एक के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, डिफरेंट एप्स होती है ना मोबाइल फोन में। अगर आपने बेटा कोई टैक्सी मंगानी है तो क्या ऐप खोलते हो? ओला, उबर, रैपिडो कुछ करते हो ना? आप आईसीआईसी बैंक खोल के बोल सकते हो मुझे टैक्सी भेज दे? नहीं बोल सकते। ओला को बोल सकते हो बता तू मेरे मेल कौन सी आई है? मेल चेक करनी है तो जो भी मेल यूज कर रहे हो, बैंक चेक करना है, हर एक का अलग अलग है ना। ऐसे ही हमारे पास सिस्टम होता है, हर एक का अलग अलग सिस्टम है। अब में बेटा यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सॉल्व करने के लिए दो चीजें दिमाग में डालो। पहली चीज आप ये देखो कि कितने ग्रुप्स हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स। दूसरी चीज आप ये देखो डेटा क्या है, क्वांटी है या क्वाली है। बस यही दो चीजें देखनी है। तो what I want you to understand is test of significance can be of two types. Test of significance can be of two types. We can have quantitative data or we can have qualitative data. Quantitative data का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव डेटा क्या जानते हो? नंबर्ड है ना? सो इसको आप जानते हो पैरामेट्रिक टेस्ट के नाम से। जो क्वालिटेटिव हैं उनको आप जानते हो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के नाम से। जो क्वांटिटेटिव है वो पैरामीट्रिक है, नॉन क्वालिटेटिव जो है वो नॉन, उनकी कोई पैरामीटर्स नहीं है ना। तो बेटा नेक्स्ट लेवल पे आपने देखना है, फर्स्ट तो ये आपने देख लिया डेटा क्या है ना। नेक्स्ट लेवल पे आपने देखना है हाउ मेनी ग्रुप्स। तो बस सिंपल सी बात है, वन ग्रुप, टू ग्रुप या थ्री और मोर ग्रुप्स, दैट्स इट। वन ग्रुप होगा तो कौन सा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगेगा क्वांटिटेटिव में? वन ग्रुप मतलब वन ही ग्रुप होगा ना। तो याद रखो वन ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप में पहले और उसी में ही बाद में। तो जो टेस्ट लगेगा वो जोड़ा लगेगा। जोड़ा मतलब इंग्लिश में होता है पेड़, कि जोड़ा याद रखना, जोड़ा जुड़ा हुआ है ना, वो एक ही ग्रुप है। तो जोड़ा हिंदी में जोड़ा मीन्स ट्विन, मतलब पेयर, मतलब पेयर्ड टी टेस्ट। टू ग्रुप्स हो जाएंगे तो नॉन जोड़ा मतलब अनपेयर्ड टी टेस्ट। तीन ग्रुप्स हो जाएंगे, थ्री और मोर मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हो गए, तो याद रखो अनोवा, ANOVA। एक ग्रुप, वन ग्रुप इज पेयर्ड, टू ग्रुप्स इज अनपेयर्ड, थ्री ग्रुप्स इज अनोवा। अगर क्वालिटेटिव आ जाए तो बेटा आपको भगवान को थैंक यू करना है, क्योंकि इन सब में एक ही आंसर है, काई स्क्वायर टेस्ट। चाहे सिंगल ग्रुप, चाहे दो ग्रुप, चाहे तीन ग्रुप, काई स्क्वायर आंसर मार्क कर दो, वो ठीक होएगा। बस यही है। याद रखो वन ग्रुप में हम, क्वांटिटेटिव में व्हाट इज द टेस्ट? पेड। टू ग्रुप सेस अनपेड, थ्री ग्रुप सेस अनो। बेटा याद रखो वन ग्रुप पेड, टू ग्रुप अनपेड, थ्री और मोर। थ्री और मोर मतलब बहुत सारे बंदे, बहुत सारे बंदे। इनोवा कार, इनोवा कार ज्यादा बंदे लेके जाती है ना। याद रखो ज्यादा बंदे ज्यादा बड़ी कार, बड़ी कार इज इनोवा कार। क्वालिटेटिव की साइड एक ही आंसर है, का स्क्वायर। बस यही है एग्जाम का क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या करना चाहिए था, तरीका क्या था सॉल्व करने का? इसमें कोई कंफ्यूज तो होना ही नहीं चाहिए। आपको ये देखना है दो चीजें, आपको ये देखना है डेटा क्या है, आपको ये देखना है ग्रुप्स कितने हैं। डेटा क्या यूज कर रहे हो? वेट, वेट वजन क्या है बेटा? क्वांटी क्वाली क्वांटी। ग्रुप्स कितने हैं? वन। आंसर क्या है? पेड टीट। बस बात खत्म हुई। जिंदगी आसान करनी चाहिए ना, कॉम्प्लिकेट थोड़ी ना होना चाहिए। एग्जाम में बस यही देखो कि कितने ग्रुप्स है, कितना डेटा, वो आपको आंसर बताएगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि हमने हेमोग्लोबिन लेवल चेक किया, हेमोग्लोबिन लेवल चेक किया तीन गांव में, ए गांव, बी गांव, सी गांव। ए गांव को हमने आयरन फॉलिक एसिड दिया, बी गांव को सिर्फ आयरन दिया, सी गांव को ओनली फॉलिक एसिड दिया।
और इनके हेमोग्लोबिन लेवल दोबारा चेक किए। कौन सा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगे? 3 गाड़ियां, अनोवा टेस्ट। अगर हमने हेमोग्लोबिन लेवल्स ए गांव और बी गांव में, एक को हमने नींबू दिया विटामिन सी, दूसरे को आयरन फॉलिक एसिड दिया, दोबारा हेमोग्लोबिन चेक किया, अनपेड। अगर मैं देखूं परसेंटेज स्मोकर्स कितने हैं आउट ऑफ 100 पीपल, उन सबको हम वीडियो दिखाएंगे, साल बाद चेक करेंगे कितने परसेंटेज स्मोकर हैं। काय स्क्वायर टेस्ट, प्लीज नोट इट इज कॉल्ड एज अ काय, के आई, काय बोलते हैं, चाय स्क्वायर ची स्क्वायर नहीं बोलते। इट इज कॉल्ड एज काय, के आई, काय स्क्वायर टेस्ट। क्यों क्यों काय स्क्वायर आया? क्योंकि परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? प्रोपोर्शनल डेटा। प्रोपोर्शनल डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा, राइट। ऐसे ही सवाल आते रहेंगे, आपको तंग करते रहेंगे। ये एक क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा तड़पाया हुआ क्वेश्चन है, किसी ने गलत बना दिया, मेरी जान को मुसीबत डाल गया। अब वो पता नहीं बंदा जिंदा है नहीं है, पर ये बड़ा गलत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो देख के मैं खुद डर जाता हूँ कि अब बच्चा मेरी पूरी वाइवा ले लेगा। A child came for DPT vaccine at 10 weeks. He has history of fever more than 40, unconsolable cry. What should be done next? अब जिसने बनाया उसको मैं रोज गाली देता हूँ कि क्यों ऐसा बना के गया वो सवाल, क्योंकि गलत बना हुआ है पहली बात तो सवाल। बट चलो एनीवेज, क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शंस नहीं मैं देख रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ऑप्शंस में है। आंसर आपको क्या लगता है क्या होना, आप क्या करोगे? बच्चा, मदर आई, मदर ने बोला पिछली दफा डॉक्टर साहब यही वाला टीका दिया था, इससे बच्चे को रोता रहा 6 घंटे, तो देना चाहिए दोबारा कि नहीं देना? माँ तुम्हारे को दोबारा वो कुर्सी उठा के मारेगी अगर तुम दोगे। 6 घंटे दोबारा बच्चा रुलाना है? नहीं रुलाना। बेकार क्वेश्चन है। जब वो पहले उसको इतना हाई ग्रेड फीवर हो गया, उसको 6 घंटे तक रोता रहा, तो मतलब कोई प्रॉब्लम हुई ना। तो ये डीपीटी तो हमें कदापि नहीं देना, बात खत्म हो। डीपीटी दोगे मतलब कई बुक्स में, इंक्लूडिंग जिस एप्लीकेशन में मैरो वैरो में मैं काम करता हूँ, वहां भी वो लोग कहते हैं कि नहीं सर, सरकारी गाइडलाइन कह रही दे सकते हैं। अब दे तो सकते हैं, गाइडलाइन तो कह रही है, बट बेटा कब नहीं दोगे? वो कहते हैं जब तक दौरा नहीं पड़ता, मतलब जब तक बंदा पगला ना जाए तब तक हम रुकेंगे नहीं क्या? ये तो कॉमन सेंस है ना, प्रैक्टिकली नॉट गुड आंसर है, राइट। सो प्लीज नोट, इसमें डीपीटी नहीं देना। अब डीपीटी नहीं देना तो हमारे पास दो आंसर्स हो गए। या तो हम डीटी दे दें, या फिर हम डी टी डैप भी दे सकते हैं बेटा। टी और डी बड़ा वाला, ए सेलुलर परट्यूसिस भी दे सकते। ए सेलुलर परट्यूसिस आपको लिखाया था शायद मैंने कि ये सेफ होता है। अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हो। सरकार कहती है कि ए पी देना थोड़ा बेटर है, क्योंकि प्रोटेक्शन तो दे दो परट्यूसिस, आप नहीं देंगे तो बच्चे को क्या हो जाएगा? आप क्यों देते हैं डीपीटी, क्यों देते हो? वैसे ही मजे के लिए देते हैं? नहीं, किस लिए देते हैं? प्रिवेंट करने के लिए ना। नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी। तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ? फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? अगर लोगों को बीमारी होने लग देने देंगे तो फिर तो हमारे बैठने का फायदा नहीं है ना। तो क्या बेटर आंसर है, डी टी या डी टैप? बस ये आंसर है। अब मुझे नहीं पता उस बंदे ने क्या सोच के ऑप्शंस बनाया, डीटी भी लिख दिया, डेफर बाय 4 है, अवॉइड डी। अब इन दोनों में मुझे नहीं पता मैं क्या चूज करूंगा। वो जिसने बनाया उसको मैं रोज बोलता हूँ, और ये रोज बच्चा आके मेरे से, रोजाना सुबह उठता हूँ टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैं रोज फिर वो क्वेश्चन डिलीट करके उसको पर्सनल मैसेज भेजता हूँ कि चेक कर ले। सो गिव डीपीटी तो नहीं है, डेफर भी नहीं है। अब डीटी वैक्सीन देनी है, यस देनी है। डीपीटी अवॉइड करनी है, तब अब अपने आप देख लो, मेरे से बस से बाहर है ये क्वेश्चन। एक और किसी एमसीक्यू बुक में बेटा चौथी ऑप्शन थी कि गिव डी टैप। अब तो और भी मुसीबत पड़ गई ना, ए भी सही, बी भी सही, डी भी सही। अब अपने आप देख लो, मुझे ही पता क्या आएगा, राइट। सो बेटर आंसर इज ऑलवेज टू गिव द डी टैप, एंड ऑफ कोर्स टू अवॉइड डीपीटी वैक्सीन। सो अब जिसने भी बनाया वो थोड़ा प्रॉब्लम में बनाया उसने, भगवान उसको शांति दे।
सपना दे। अच्छा सपना ये। अच्छा ये सपना मैं। शांति दे आप कहते नहीं, शांति नहीं, सपना दे मैंने। सो इमेज शोन बिलो इज फॉर सपना फॉर लेप्रोसी। ये बाकी बेटा ऐसा नहीं है कि मेरे से पूछने बैठ जाओ, ये सब कोई नहीं होते, दे डोंट एग्जिस्ट है। ओके, अरोही अमिता ये किसी के दोस्त होंगे, किसी ने बना दिया, अपने दोस्तों का नाम डाल दिया। 7 year old बॉय बिटन विद द रेबिड डॉग। करो करके देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब्रेजन्स एंड स्क्रैचेस विदाउट ब्लीडिंग। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। इट इज लोकल ट्रीटमेंट एंड गिव ARV। वूंड देना है, यस देना है, बट दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। गिव इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देना, एंटीबायोटिक नहीं देना। इट इज गिव ARV। ये साथिया रिसोर्स किट कहाँ होती है? लेप्रेसी। कितनी दफा बताऊंगा साथिया अप्रोच। अभी वो लड़का लड़की बना भी दिए उन्होंने, बातें भी कर ली, दूसरा पतंग भी उड़ाने भेज दिया। इंक्लूड्स बॉयज एंड गर्ल्स इन, कम्स अंडर राष्ट्रीय किशोर, ये नहीं क्वेश्चन क्या है? नॉट ट्रू, अच्छा नॉट ट्रू बताना है। सो इंक्लूड्स बॉयज एंड गर्ल्स, कम्स अंडर राष्ट्रीय, प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन, एम टूवर्ड्स टू प्रोवाइड देम सैन। ये गलत है आंसर, इट इज नॉट फॉर सैनिटरी नैपकिंस। तो देते हैं हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन, बट इट्स नॉट ओनली टू डू दैट। बस बेटा खत्म हो गया। बस कॉपी पेंसिल फेंकना शुरू हो गया तुम लोग। अ पेशेंट और lymphatic filariasis being managed below, what is the level? ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, घिसा हुआ कोई अच्छा क्वेश्चन है। डिसेबिलिटी लिमिटेशंस या प्राइमरी प्रिवेंशन या हेल्थ प्रमोशन तो नहीं है, चलो। सो प्राइमरी भी नहीं है, बीमार होगी ना ये तो फीमेल, आप देख सकते हो बीमार है, हाथी पांव हो गया। सो करेक्ट आंसर इज डिसेबिलिटी लिमिटेशन। बट अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन होता तो वो भी हम मार्क कर सकते हैं कि ये साफ कर रहा है, वो ठीक ठीक कर रहा है। बट यस, दिस इज अ बेटर आंसर, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। प्राइमरी तो बिल्कुल नहीं है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं है। ये क्या चीज है? मम्मी और बच्चा छाती में बैठे हैं, जय श्री हनुमान। ऐसा है। सो बेटा एक हमारे पास WHO का क्राइटेरिया है टू टैकल निमोनिया, ठीक है। एक हमारे पास इंडियन क्राइटेरिया है। इंडियन क्राइटेरिया यूज नहीं होता इतना, बट ये लोगो होता है, ये कई दफा पूछ सकते हैं, इसको कहते हैं सांस। सांस नहीं, सांस। SAANS, सांस। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इट इज नॉट सोसाइटी एक्ट, सोशल एक्ट टू न्यूट्रलाइज। इनमें फर्क क्या हुआ? अच्छा सोशल एक्ट नहीं है, सोसाइटी अचीवमेंट भी नहीं है। इट इज सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। इट इज द इंडियन गाइडलाइंस फॉर निमोनिया मैनेजमेंट इन इंडिया। सो निमोनिया मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट नो निमोनिया, सम निमोनिया या निमोनिया एंड सिवियर निमोनिया। व्हाट इज द ट्रीटमेंट वी गिव फॉर सिवियर निमोनिया? चलो पढ़ लेना, एमोक्सिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ओरल एमोक्सिसिलिन। अभियान इंद्रधनुष कर लिया, डिजास्टर ये बताओ फटाफट से, ये तो वैसे कर ही लोगे डिजास्टर। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम बेटा एक पुराना प्रोग्राम था, इट हैज बीन क्लोज नाउ। 7 days की ट्रेनिंग होती थी उसमें। ये कौन सा लोगो है? याद रख लो, कोई नीचे से जो चीज उग रही है, एंड ये प्लांट को डिनोट करता है, प्लांट या ट्रीज। तो बेसिकली ये न्यूट्रिशन के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए है।
तो कौन सा होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, जननी शिशु। याद है ये प्रोग्राम हमने बात किया था, पोषण, हमारा असली प्रोग्राम पोषण, पोषण अभियान। यू रिमेंबर दिस इज द लोगो फॉर पोषण अभियान। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोषण अभियान? पोषण का फुल फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर, ये फैंसी सा नाम, इतनी इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं आती होगी, हमने नाम लिख दिया इतना सुंदर सा। इट इज ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ये बताओ, थोड़ा मुश्किल सवाल है। रूरल पीएचसी बेटा वैक्सीन रख रही है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। Vaccine can be stored till 2 months. Minimum electricity is this. No electricity. Vaccine for 5 days. Keep at pH. A. Very nice. It is. आपने already बात किया था that it is to be stored till 1 month. That is 4 weeks. That is 28 days. ये देख सकते हो ये क्या चीज आ रही है? बिना क्वेश्चन पढ़े, बिना आंसर पढ़े, ये क्या है? याद है ये हमने बात किया था, दिस इज amorphous liquid and this is clear. एंड इस वजह से हम एमपीडब्ल्यूज को ट्रेनिंग देते हैं कि आपने ना प्रेसिपिटेट्स नहीं देखने, आपने लिक्विड देखना है, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स तो बेटा नीचे जम जाएगा, तो वैक्सीन को ऐसे देखोगे तो वो तो दिखेगा नहीं ना कांच में, यहाँ आप यू कैन नॉट सी द प्रेसिपिटेट्स। हाँ, लिक्विड कलर यू कैन अप्रिशिएट, इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि वो ऑलरेडी प्रेसिपिटेट करके नीचे बैठ चुका है यहाँ पे, राइट। चलो, ये डीपीटी का एक क्वेश्चन आया था। डीपीटी मेरी जान को मुसीबत होता है बस। वेयर इज डीपीटी, ये तो सिंपल है, वेयर इज डीपीटी स्टोर्ड? वैसे ही बता दो बिना ऑप्शन के, ऊपर या नीचे? अपर जोन। ओपन वाइल पॉलिसी किस में एप्लीकेबल है? क्या बोली? क्या बोली है? बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी। अच्छा, ऑप्शन पर ओपन वाइल एप्लीकेबल फॉर। इतना टाइम लग रहा है, मतलब कहीं से खोज के ला रहे हो आंसर। इट इज एप्लीकेबल फॉर विच वन? बीसीजी में यस और नो? नो। डीपीटी यस, ओपीवी यस, एमआर नो, न्यूमोकोकल यस। सो आंसर्स आर 2, 3 एंड 5। आंसर्स आर 2, 3 एंड 5। विच प्रोग्राम इज शोन बिलो? एबीसीडी छोड़ो, नाम बता दो। टीबी, इट इज अ टीबी प्रोग्राम, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। पुराना जमाना था जब एक वो बंदा दिखाते थे, उसके हाथ ऐसे थे, वो ऐसे करके खड़ा था, पूरा कोर्स पक्का इलाज उसके अंदर लिखा होता था, दिस वाज ओल्ड लोगो। ये ओल्ड लोगो है, याद है तुम्हें? ऐसा बंदा कभी देखा होगा, ऐसा करके बंदा था टीबी वाला, हाफ अलग कलर हाफ अलग कलर, नहीं देखा? अस्पताल में जाओगे तो दिख जाएगा। अब ये प्रोग्राम चेंज हो गया, अब इसका लोगो ऐसा हो गया। ये कौन खेल रहा है? बच्चे तो खेल रहे हैं, पहचानो कौन बच्चा, नाम बताओ इन बच्चों का। सपना नहीं है, सपना इज विद स्कूल। कहाँ था शिकारी आएगा जाल फेंकेगा, तुमने तुमने जाल में नहीं फंसना। ट्रू अबाउट विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। ट्रू अबाउट विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। ट्रू बताना है, गलत बताना? 1 2 3 4। 1 2 3 4। अबे बी मुझे नहीं ना सुनता है, एक बी सुनता है, एक डी सुनता है। 1 2 3 4। टू। वेरी, फिर बी मानती नहीं है। इट इज टू करेक्ट आंसर, बिकॉज इट्स नॉट वंस अ ईयर, इट इज वंस एवरी मंथ, ये हर महीने होता है। फाइनल रिपोर्ट इज गिवन टू आशा, इधर कोई प्रधान लगी है उसको नहीं मिलेगा। फैमिली प्लानिंग इज नॉट अ पार्ट, इट इज अ पार्ट, राइट। ये किसका है फॉर्मूला 103? ये दिख रहा है तुम्हें?
It is total number of daughters that a newborn girl child will bear during her entire life with age specific fertility and mortality. क्या आंसर है? It is एन आर। याद है, पहला वर्ड ही तुम्हें आंसर दे रहा है ना यार, पूरा थोड़ी ना दिमाग लगाना है। जब मोर्टालिटी आ गया तो मोर्टालिटी में बाकी तो है ही नहीं ना। मोर्टालिटी इज ओनली विद एन आर आर। बेबी वॉज डिलीवर्ड एट होम अंटिल विच डे आशा उसके घर आती जाती रहेगी? चाहे घर पे डिलीवर हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे दुकान पे हो, इट इज 42 डेज। इट इज 42 डेज, है ना। दुकान मतलब अस्पताल भी तो दुकान ही है बेटा, वो भी तो, है ना। ये कौन सा प्रोग्राम है बेटा? Couple decided to opt for government-sponsored permanent method of sterilization in the district hospital. Post-operative day two, patient face medical complication. बाप रे, spouse this is under the, ये रहने दो ये। सी फुल फॉर्म क्या है? ओ वेरी नाइस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर नेशनल फैमिली प्लान। पढ़ा हुआ है वैसे ही अंदर से जागरूकता है, पढ़ा हुआ है। नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेमिनिटी स्कीम। इंडेमिनिटी स्कीम। करेक्ट आंसर, इट इज नेशनल फैमिली इंश्योरेंस नहीं बोलते, इट इज इंडेमिनिटी स्कीम। इंडेमिनिटी मतलब उसके लिए अगर कोई गलती हो जाए तो उसको कवर करने के लिए मुआवजा स्कीम है, इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस होता है बेटा कुछ भी हो जाए, हम इसमें होता है कोई गलती हो जाए तो मुआवजा स्कीम है ये। सो इसको इंडेमिनिटी स्कीम कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको नेशनल फैमिली इंडेमिनिटी स्कीम। ये क्या है? 110 लास्ट क्वेश्चन है, चल। गिवन बिलो इज ग्राफ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। वैसे वो गलत हो गया, ये रिसर्च का क्वेश्चन है मैडम का। इतना टाइम लगा रहे, कहीं से जुमरी तलैया से खोज के ला रहे हैं आंसर। या तो आता है या तो नहीं आता। ए बी नहीं सुनता मुझे। 1 2 3 4। टू। टू। बाकी पब्लिक क्या बोलती है? सी, डी, टू, बी है। क्वेश्चन क्या? आइडेंटिफाई द मार्क 1 and 2 and 3। व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड? मीन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय। मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू। आगे? बस मिडिल वैल्यू। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं 4 9 2 3 1, इनका मीडियन निकाल लो तो आंसर 2 हो जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग खड़ा करके फिर देखोगे ना सेंट्रल वैल्यू। सो इट इज द मिडिल वैल्यू आफ्टर रेंजिंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज मोड? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज वन? मोड क्यों बोले मोड? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट वेरिएबल? इतना नहीं, जोर नहीं लगाना बेटा, आराम से, टेक इट इजी। इसमें बड़ा सिंपल है बेटा। मैं तुमसे कल से परसों से इतने दिनों से यही पूछ रहा हूं कि मान लो हम कुछ भी बात कर लें कि किसी ने कितनी रोटियां खाई, इसकी हमने बात करी थी, तो ये ऐसे करके बनाया था। मैंने बोला था बहुत कम बच्चे होंगे जो 2 रोटी खाएंगे पूरे दिन में, बहुत कम होंगे जो 20 रोटी खाएंगे। मैक्सिमम हम में से लोग 10 के आसपास घूम रहे होंगे, यही है कहानी। मैक्सिमम लोग, तो इसमें मोड कौन सा हुआ, 20 या 10 वाला? 10 वाला ना। तो कहने का मतलब हिडन मीनिंग क्या है, ये तो ग्राफ मैंने आपको बना दिया। तो कहने का मतलब है किसके और किसके बीच में है ये ग्राफ? ये ग्राफ किसके और किसके बीच में है? यहां पे क्या है? रोटी, वेरी नाइस। और यहां पे क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स। तो हाईएस्ट पर्सन
ने 10 रोटी खाई। यही इसी को ही तो बोलते हैं मैक्सिमम हम में से 10 खाई। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 2 खाई। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 20 खाई। अगर मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दे दूं पीएसएम का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, अभी राइट नाउ, तो आप में से कैसे मार्क्स आएंगे सबके? ऐसे ही तो आएंगे। बहुत कम लोग होंगे जिनके 10 नंबर या 2 नंबर आएंगे। बहुत कम होंगे जिनके 20 में से 20 आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ अस 10-15 पे घूम रहे होंगे। यही होता है। अगर मैं आपका वजन ले लूं, हाइट ले लूं, सब कुछ दुनिया में ऐसे ही तो आएगा। अगर कुछ भी, कितने घंटे आप सोते हो वो भी ऐसा आएगा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो वो भी, कितने घंटे आप इंस्टा देखते हो वो भी ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही आएगा। तो इसमें जो टॉप है बेटा, टॉप हमेशा किस क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही होता है इसका मतलब। अगर मैं आपको कभी बोलूं कि डेंगू बुखार बेटा, इसका जो बुखार होता है, डू यू नो कि ये बुखार हाई ग्रेड होता है या लो ग्रेड होता है? हाई ग्रेड होता है। ये 2 दफा आता है या एक ही दफा आता है? 2 बार ही आता है। कब कब? वेरी नाइस। आई थिंक अगर आपने डेंगू मरीज कभी देखा हो तो आपको पता है कि इसका बुखार एक दफा तो पीक करेगा 2 से 3 दिन के अंदर। एक दफा ठीक हो जाएगा मरीज, वो कहेगा मैं तो ठीक हो गया जी, तू ऐसे ही बोल रहा डेंगू है। उसके बाद पलट के फिर आएगा। वो 5 से 7 दिन के बाद फिर आता है, 2 से 3 दिन पे। तो मतलब ये पीक हुआ ना फीवर का। इसको आप क्या बोलते हो? बाई मोडल फीवर, राइट? जब बाई मॉडल दिखाना है तो कहने का मतलब है बेटा पीक इज ऑलवेज द मोड। तो इसमें अगर कभी आपको कुछ भी सवाल आ जाए ना, तो पीक को क्या कहेंगे? व्हाट इज पीक? पीक इज ऑलवेज द मोड। अब ये थर्ड नंबर क्या है? ये मीन है या मीडियन है? ये मोड तो नहीं है, है? ये तो सबसे नीचे, ये तो सबसे कम लोग हैं। मीन है कि मीन भी हो सकता है? आप मना तो नहीं कर सकते कि 3 पे मीन नहीं है। हो तो सकता ही है बेटा। इट विल डिपेंड कि ये रेंज कैसी है। इफ द रेंज इज समथिंग लाइक दिस, 1, 2, तो ये फिर ये मीन नहीं है ना, बिकॉज दिस विल नॉट बी द सेंटर वैल्यू। बट यस, दिस कैन बी ऑलवेज द मीडियन। इधर से इमेज से देखने पे क्या लगता है आपको? इमेज देखने पे क्या लगता है? दिस इज अ मीन और द मीडियन? मीडियन। सो ये आंसर आपका सही आंसर। जब भी नोक देखो, माउंटेन का पीक देखो, पीक इज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा इज द मोड। जब भी सेंटर देखो, वो हमेशा, दैट मीन्स ऑलवेज इज द मीडियन। मीडियन, मीन नहीं। मीन तो होता है बेटा एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, एवरेज वैल्यू कम भी हो सकती है। बट मीडियन तो सेंटर ही, मीडियन का नाम ही मिडिल वैल्यू है। तुम अभी तो बोल रहे थे मिडिल, मीडियन कभी होता है? कभी ये डेटा है इसका मीडियन आज साइड पे चला गया। सेंटर कभी साइड पे होता है कि आज ये सेंटर साइड पे चला गया? सेंटर तो सेंटर में ही होगा ना। तो सेंटर वैल्यू इज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा मीडियन होगा। पीक वैल्यू इज हमेशा मोड होगा। एवरेज तो हम कैलकुलेट करेंगे, वो देख के नहीं आप बता सकते कि इसका मीन इतना है, राइट? सो इसका बेस्ट आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 2. Last question to close off the day. In rural village, a community health worker uses a puppet show to educate the local population. What method of communication is being used here? Exhibit, role play, folk media या demonstration? Very nice. This is a puppet show. Puppet show is folk media. Nukkad Natak, puppet show, street plays, all these are folk media. Chalo. And with that, thank you so much for listening to. धन्यवाद। धन्यवाद so much. Thank you very much. सच में ये कल भी हमने बात किया था कि मजा तब है जब तुम इसको यूज कर पाओ, है ना? तो वो कहते हैं इत्र से कपड़े को महकाना तो कोई बड़ी बात नहीं होती,
मजा तो तब है जब किरदार में से महका है ना। तो किरदार महकना चाहिए। कपड़े जो मर्जी पहन लो, मजा तब है जब बंदे में से तो उतना जोरदार चमकना है हमें। क्योंकि जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, पर अच्छी जिंदगी जीने में और जिंदगी जीने में फर्क है। नर्स तो हर कोई बन जाएगा, अच्छे नर्स बनने में और नर्स बनने में फर्क है। तो उस लेवल तक पहुंचना है। ठीक है, प्रॉमिस अपने आप से करो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। एंड जो भी आप इंस्टा पे डालो, हमें टैग करो। अच्छा लगता है एग्जाम पास हो तो मेक श्योर के हमें भी याद करना, क्योंकि मेहनत तो हम लोग भी करते हैं बेटा आप सबके लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। मेक श्योर के जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपने पढ़ा है, इसको आप यूज कर पाओ। ऑफ कोर्स ये बेस्ट टाइम है आपकी लाइफ का, दैट यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स एंड सब लोग कोचिंग, ये यादें भी रहनी चाहिए। बट इस टाइम पे बेटा, इस टाइम पे मैं जब भी कभी गुरुद्वारे, मंदिर, कहीं भी मस्जिद, कहीं भी जाता हूं मैं, तो ऊपर वाले से यही मांगता हूं कि जिस टाइम पे जो करना चाहिए ना, भगवान इतनी अकल दे कि उस टाइम पे हम वो कार्य कर पाए। पढ़ना है तो हम पढ़ पाए, खेलना कूदना है तो खेल पाए, पार्टी करनी है तो पार्टी, मतलब जो करना है वो दिल से, वो पूरी शिद्दत से वो करें। ये जो टाइम है आपका, यू आर इन द बेस्ट ऑफ द टाइम, बट एग्जाम भी तो है। तो इस टाइम से ऊपर वाला तुम्हें इतनी ताकत दे कि तुम इस टाइम पे वो कर पाओ जो तुम्हें करना चाहिए। तो बस यही मेरी ऊपर वाले से दुआ होगी। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, थैंक यू।